Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you know that we are doing our chapter number 8, Human Health and Disease, and we were doing yesterday the topic immunity. हमने immunity के बारे में बात की थी. Immune system और immunity का कुछ पार्ट आज करेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा और हम एलर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी एंटीबॉडीज़ का हमने स्ट्रक्चर करना है. तो हमने WBC के बारे में बात की थी कि WBC आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ओके, एंड फिर ग्रेन्युलोसाइट्स की भी फर्दर 3 टाइप्स हो जाती हैं. कौन कौन सी? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स. सॉरी, एसिडोफिल्स नहीं, न्यूट्रोफिल्स. ओके, ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऑल्सो फर्दर 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ओके, we are to discuss about lymphocytes. Lymphocytes further 2 types, B lymphocytes and T lymphocytes. हमने बात की थी कि B lymphocytes develop into plasma cells. ये प्लाज्मा सेल में डेवलप हो जाती है. प्लाज्मा सेल वाई शेप्ड प्रोटीन बनाते हैं. प्लाज्मा सेल मेक वाई शेप्ड प्रोटीन विच आर नोन एज एंटीबॉडीज. ओके, then antibodies goes to the site of infection. They bind with the antigen and hold the antigen and make them immobilize so that they can't move, and then macrophages and neutrophils come to the antigen and then they start eating. Okay, these things we were discussing. It means function of antibodies was done and structure of antibody is left. So now we will do the structure of antibodies, that what are the parts of antibodies. This question is important for your board exam. Antibodies के बारे में पूछा जाता है. So if you draw the diagram of antibodies, it is Y-shaped protein, as you all know, I told you. Okay, and this one chain, these 2 chains are linked by disulfide bridges like this. Okay, this is the structure for antibody. Okay, now you see these 2 chains, which is a complete chain, these chains are known as heavy chain. These chains are known as heavy chains. These chains are known as light chain. Okay, and these are disulfide bridges या disulfide linkage. This question is asked in NEET, that how 2 heavy chains are connected to each other. They are joined with the help of disulfide linkage. Okay, this site is known as antigen binding site. Antigen binding site, which is known as paratop. इसको क्या बोलते हैं? paratop. Now suppose this is bacterial antigen. ये कोई bacterial antigen है like this. ठीक है, ये इसकी बाइंडिंग साइट है जहाँ से इसको यहाँ पर बाइंड होना है. इसकी बाइंडिंग साइट को बोला जाता है एपिटॉप. नाउ सी द थिंग्स अगेन. सी, दीज आर हैवी चेन्स. जो एक कंप्लीट चेन है इसको हैवी चेन बोला जाता है. द स्मॉलर चेन आर नोन एज लाइट चेन. दीज हैवी चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस and this site is known as antigen binding site, which is paratop. And the site from where this bacteria will attach to this site is known as epitop. So antibody is also known as H2L2, means 2 heavy chain, 2 light chain. Is it clear? So this is the structure of antibody. Function you all know. Antibody क्या करती हैं? They go to site of infection
and they attach on the antigen से attach होती हैं, make them immobilize and attract neutrophil and phagocyte so that they can eat the antigen, and then they neutralize the effect of toxin which is produced by the microorganism. This is the function of antibody. Now we will do types of antibodies. First type is IgA, second is IgG, third is IgE, fourth IgD, and fifth is IgM. What is the full form of Ig? It is immunoglobulin. Immunoglobulin A, immunoglobulin G, like this. Okay. You know that structure तो हमने कर लिया है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है इनके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर तो हमने करना नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट वी शुड नो द फंक्शन ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन. IgA found in body secretions. It found in body secretions. Now what are those body secretions? Like sweat, okay, mucus, mother's milk, etc. Okay, like when mother is pregnant and then baby is delivered, after delivery first milk which is produced by the mother is known as colostrum. Okay, and you all know that doctors always say that this first milk colostrum is very beneficial for the child. Why they say? Because in that colostrum this antibody is present, that is IgA. This question once time asked in NEET that which antibody is present in colostrum first milk produced by the mother. That antibody is IgA. IgG is the smallest antibody, सबसे छोटी है, and found more than 70% out of all. Total 100% these antibody, इनमें से 70% अकेली IgG होती है. Okay. Next thing is IgE. This antibody act during allergic reaction. It play a role in allergic reaction. And ये जो IgG की एक चीज़ और तुम्हें याद रखनी है, ये इतनी small होती है that it can cross placenta. It can cross placenta. You have to remember this point also. And IgE play a role in allergic reaction. Now IgD act as receptor of B cells. ये B cells के रिसेप्टर का काम करते हैं. लाइक दिस इज अ B सेल, ये कोई B सेल है और इसके ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. ये किसके होंगे? IgD के होंगे. लास्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन M. दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी. स्मॉलेस्ट कौन है? IgG. लार्जेस्ट कौन है? IgM. And it is the first antibody which reach at the site of infection. First antibody which reach at site of infection. Wherever infection in our body, then the antibody IgM reach always first. उसके बाद ही बाकी आती है और ये जाके क्या करती है? It activate phagocytes, it activate neutrophils, it activate immune system. सबको एक्टिवेट करती है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में. Now you wake up. वो सब सो रहे हैं, उनको जगाने का काम करते हैं. So what you will write? It activate immune system. To sum up the things, you can write activate immune system, otherwise you can write it activate macrophages, activate neutrophils, activate WBCs and all. So these are the types of antibodies. Clear? Next thing is we discussed about types of immunity. हमने immunity के दो types पढ़ी थी, innate immunity and acquired immunity. Okay, ये दो types हमने की थी. Innate immunity was that which is we get from our parents, जो inherited है. Acquired immunity which we get after birth. Okay, अब दो type की immunity और पढ़ेंगे हम. Immunity is furthermore two types. First one is active immunity and second one is passive immunity.
नाउ व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? Whenever we face an pathogen, जब भी हम किसी पैथोजन को फेस करते हैं, we are exposed to antigen, then antibodies are produced in our body. जब भी हम किसी एंटीजन को फेस करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती हैं. That type of immunity is active immunity. And it take time. ऐसा नहीं है जैसे एंटीजन एंट्री हुआ तो एंटीबॉडी बन जाएगी. It takes some time. We discussed in our last class. बहुत अच्छे से हमने एक युद्ध हमने डिस्कस किया था, कैसे युद्ध होता है, कैसे फाइट होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था. ठीक है, वो इम्यूनिटी कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी. व्हेन बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, दैट एंटीजन मे बी लिविंग, मे बी नॉन लिविंग और इनएक्टिव फॉर्म हो सकती है, then antibody formed in the body. This type of immunity is called active immunity. This immunity is slow and take time. It take time to give full response और effective response. पूरा response देने में इसको टाइम लगता है. किसको? एक्टिव इम्यूनिटी को. अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इन बॉडी. हमारी बॉडी में जब रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, यहाँ तो बन रही हैं इसलिए उसको टाइम लग रहा है, वहाँ पर रेडीमेड इंजेक्ट की जाते हैं इसलिए वो फास्ट भी है. लाइक कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क की हमने बात की. व्हेन फर्स्ट टाइम बेबी इज फैड बाय द मदर देन इट इज कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क. सो रेडीमेड एंटीबॉडी बेबी को मिल रही है मदर से, तो वो कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी. सो व्हाट विल यू राइट? That when ready-made antibodies are injected in body, this is known as passive immunity. Example, colostrum contain which immunoglobulin? Immunoglobulin A, IgA antibody उसको मिलती है through placenta. Clear? So these two more type of immunity you have to learn. Next thing we will discuss about vaccination. Nowadays you hear about the word vaccine. Corona vaccine is in fashion nowadays, that you have to get vaccinated of corona. What do you mean by vaccination and what is vaccine? उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. So vaccination. What happen in the process of vaccination? वैक्सीन क्या होती है? In case of vaccine, any living, जिस भी हम डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन दे रहे हैं, उस डिजीज़ का लिविंग और नॉन लिविंग और इनएक्टिव फॉर्म में एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट करना, उसको क्या बोला जाता है? वैक्सीनेशन. और उस पर्टिकुलर एंटीजेनिक प्रोटीन को वैक्सीन बोला जाता है. अब ये डलने से क्या होगा? उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, और वो जो एंटीबॉडी बनेंगी, व्हेन नेक्स्ट टाइम एंटीजन विल अटैक आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अटैक करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो एंटीबॉडी फुल रिस्पॉन्स के साथ पूरी स्ट्रॉन्ग बन के उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे और उस एंटीजन को किल कर देंगे. दूसरा क्या काम करते हैं वैक्सीनेशन? वैक्सीन क्या काम करेगी हमारी बॉडी में जाके? मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स को एक्टिव बनाती हैं, जनरेट करती हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन एंटीजन विल एंटर इन आवर बॉडी देन दे कैन रिकॉग्नाइज कि ये पैथोजन पहले भी आया था, ये अब फिर आ रहा है, तो पूरी फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं अभी मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर. वैक्सीनेशन, इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या तो उस पैथोजन की एंटीजेनिक प्रोटीन होगी और लिविंग, नॉन लिविंग, you don't write living, non living or inactive you can write, inactive or non living form of antigen is injected in body, injected in body. So you can say vaccination is a
टाइप ऑफ और वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी एक तरह से हमारी बॉडी में डाली जा रही है ना, इंजेक्ट की जा रही है। तो ये वैक्सीनेशन है, जब कोई एंटीजेनिक प्रोटीन किसी पैथोजन की जिसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीनेशन कराई जा रही है। सपोज हम कोरोना की हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कराई जा रही है, वैक्सीन हमारी बॉडी में डाली जा रही है, इंजेक्ट की जा रही है, तो वो एक्चुअल में है क्या? या तो वो कोरोना की इनएक्टिव फॉर्म है या नॉन लिविंग फॉर्म है कोरोना की, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। यू कैन इमेजिन कि ये एक चीज़ हार्मफुल भी हो सकती है। कोरोना हमारी बॉडी में नहीं है लेकिन फिर भी हम कोरोना को डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने उसको इनएक्टिव फॉर्म में या नॉन लिविंग फॉर्म में एंटीजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर गया है, देन यू मेक आर्मी, उसके अगेंस्ट आर्मी बनानी शुरू कर देगी। वो आर्मी कौन है? एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी में एंटर होगा, व्हाट विल हैपन? एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देन दे विल स्टार्ट किलिंग एंटीजन एंड दे विल, दीज एंटीबॉडीज विल, व्हाट यू विल से, will fight against antigen, you can write fight against antigen। ये एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेंगी। और क्या करेंगी? एंटीबॉडीज ऑल्सो जनरेट और यू कैन से एक्टिवेट। किसको एक्टिवेट करेंगी? मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स। जो मेमोरी सेल्स है ना, उनको एक्टिवेट करेंगे कि वेन एवर यू नेक्स्ट टाइम विल फेस एनी एंटीजन देन यू हैव टू डू दिस थिंग। उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी वो, नेक्स्ट टाइम की कोई पैथोजन आएगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि पहले भी आया था ये फिर से आ गया है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। नेक्स्ट थिंग इज ऑटो इम्यून। नेक्स्ट थिंग इज ऑटो इम्यूनिटी, यू कैन से, or autoimmune disease you can say. Autoimmunity, you write autoimmunity. Now what is autoimmunity? What happen? In some cases due to genetic reason or due to any unknown reason our body start attacking self cell। खुद की ही सेल को अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना शुरू कर देती है। उस केस को क्या बोला जाता है? ऑटो इम्यूनिटी। इससे फिर डिजीज होते हैं हमारी बॉडी में, उन डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गठिया बागे, तुमने गठिया बागे बारे में तुमने सुना है। तो ऑटो इम्यूनिटी व्हाट हैपन इन दिस केस? when our body attack self cells, खुद की ही सेल पे अटैक होना शुरू कर जाए, खुद की ही सेल पे, उसको फौरन समझ के खुद की सेल पे अटैक करना शुरू कर दे हमारी बॉडी, वो ऑटो इम्यूनिटी होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू जेनेटिक रीजन और अननोन रीजन। कोई अननोन रीजन हो सकता है or any unknown reasons. This is autoimmunity and it cause damage to body। हमारी बॉडी में इसकी वजह से डैमेज होता है और वो डैमेज क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज इज रूमेटॉइड arthritis। A lot of people are there in our India which are facing this autoimmune disease, rheumatoid arthritis, that is Gathiaba. What happen in this case? Joints of hand and legs are affected in this case. So maybe swelling is there due to some genetic problem, it is there, or due to any unknown reason. We can't guess that what is that reason. Okay, this is autoimmunity. After autoimmunity एक बहुत ही फेमस जो है टॉपिक है, दैट इज एलर्जी। वी विल डिस्कस अबाउट एलर्जी नाउ। व्हाट इज एलर्जी? इफ वी टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर बाद में समझाते हैं क्या है। इट इज एक्साग्रेटेड response
of immune system, response of immune system to antigens of environment. See, what is it? Exaggerated means बहुत बढ़ा चढ़ा के कि हमारा इम्यून सिस्टम बिना मतलब के बहुत ज़्यादा कुछ फील कर लेता है कि एनवायरनमेंट में कोई एंटीजन है और पता नहीं क्या होने वाला बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के देखने लग जाता है कि पता नहीं क्या बॉडी में एंटर कर गया है, उसको एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स बोला जाता है. मीन्स एलर्जी इज सिमिलर टू इन्फेक्शन बट इट इज़ नॉट एनी इन्फेक्शन. एक इन्फेक्शन जैसा है बट इन्फेक्शन नहीं है. एंड दोज सब्सटेंसेस जिसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, उसको बोला जाता है एलर्जेंस. तो व्हाट यू विल राइट? सब्सटेंसेस to which such response is produced are called allergens. उनको क्या बोला जाता है? एलर्जेंस. वो एलर्जेंस कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल, कोई पोलन ग्रेन हो सकता है. जैसे हम किसी एक नए एरिया में कहीं पे भी जाते हैं तो जाते ही हमें स्नीजिंग होने लग जाते हैं, छींकने लग जाते हैं, वोटरी आइज, आंखों से पानी निकलने लग जाता है, रेडिशनेस हो जाती है और कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, रनिंग नोज, इस तरह की अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो मे बी वहाँ से कोई पोलन हमने इनहेल कर लिया है या कोई डस्ट इस तरह का है जो हमने फर्स्ट टाइम उसको फेस किया है. ठीक है, तो लाइक पोलन इज देयर, डस्ट पार्टिकल, और मे बी एनी एनिमल डेंडर. एनिमल डेंडर मीन्स किसी भी एनिमल का फर, हेयर एट्सेट्रा, इस तरह के अगर चीज़ों को फेस करते हैं देन वी स्टार्ट सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? अभी मैंने जो बोले हैं वो सिम्टम्स हो जाएंगे एलर्जी के. दैट आर द सिम्टम्स. व्हाट? रनिंग नोज, नाक से पानी निकलने लग जाएगा, वोटरी आइज, आँखों से पानी निकलने लग जाएगा, स्नीजिंग, छींक आने लगेगी, और मे बी प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स etc. Okay, these are symptoms of allergy. Now question arises कि ऐसा क्या होता है कि हम इन चीज़ों को फेस करते ही हमें ये सब होने लग जाता है? इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा फील कर जाता है कि पता नहीं क्या बॉडी में एंटर कर गया है. यू नो कि हमारी बॉडी क्या करती है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बर्दाश्त नहीं करती है. वेन एवर एनी फॉरेन एजेंट एंटर इन आवर बॉडी देन एवरीथिंग बिकम एक्टिव. सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है कि पता नहीं क्या एंटर कर गया है. ठीक है, तो उसी चीज़ को अब हम देखते हैं कि क्या हो जाता है ऐसा कि ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. सी, सपोज टेक एग्जाम्पल, एनी पोलन ग्रेन एंटर इन आवर बॉडी. पोलन ग्रेन को हमने इनहेल कर लिया. ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, अब जैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी फील्स व्हाट कि फॉरन आ गया है, यू हैव टू अटैक ऑन इट. इससे क्या होता है? IgE जो एंटीबॉडी है, इट स्टार्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन बॉडी. IgE बननी शुरू हो जाती है. ये IgE क्या करती है? ये B सेल्स के पास जाती है. B सेल्स है यहाँ पे, और B सेल्स के ऊपर, नॉट B सेल्स, दिस आर मास्ट सेल्स. मस्त सेल है, मस्त है बहुत, है ना, मस्त रहती हैं, तो इनको मास्ट सेल बोलते हैं. इनके ऊपर ये अटैच हो जाती हैं जाके. ठीक है, अब मस्त सेल को क्या करना होता है? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ये जो हिस्टामिन केमिकल होता है ना, ये बहुत ही डेंजरस है. ये चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर देता है बॉडी को कि समथिंग इज सीरियस, कुछ बॉडी में एंटर कर गया है एंड यू हैव टू डू समथिंग. तुम्हें एक्टिवेट हो जाना चाहिए. एंटर क्या किया बेचारा छोटा सा पोलन जो कुछ भी हार्म नहीं करने वाला है. तो ये मस्त सेल ये केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. व्हाट दे डू? दे एक्टिवेट. ये सारी आर्मी तक मैसेज पहुंचा देती हैं. जैसे कोई फॉरेन पर्सन हमारी इंडिया में एंटर कर जाता है तो सभी आर्मीज़ को, जितनी भी, चाहे कोई भी डिफेंस पार्टी है, सबको ये ऑर्डर्स आ जाते हैं कि यू हैव टू बी एक्टिवेट. सेम थिंग हैपन, जैसे पोलन बॉडी में एंटर करेगा, हिस्टामिन चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर देगा कि यू बिकम एक्टिवेट. किस किस को एक्टिवेट करेगा? मैक्रोफेजिस को करेगा एक्टिवेट, मैक्रोफेजिस, एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स. जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, इनको एक्टिवेट करेगा. और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करने वाला है? ये वैसोडाइलेशन.
वैसोडाइलेशन मीन्स ब्लड वेसल्स को थिक कर देगा। ब्लड वेसल्स थिक क्या होंगी, ज़रूरत से ज़्यादा लिम्फ सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे उस एरिया में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब जब ये बॉडी में सब कुछ हो रहा होगा तो WBC, तो जो सबसे खतरनाक सोल्जर है हमारी बॉडी के, वाइट ब्लड सेल्स, दे बिकम एक्टिव, और ये इन सर्च ऑफ बैक्टीरिया, सोचते हैं कि वो पक्का कोई पैथोजन एंटर कर गया तभी तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया के सर्च में भागने दौड़ने लग जाते हैं बॉडी में। जहाँ जहाँ भागने दौड़ने लगेंगी बैक्टीरिया को खाने के लिए, एलर्जी वहाँ पे स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी एक्टिवेट हो गया कि समथिंग इज देयर। हुआ ना ये एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स, बढ़ा चढ़ा के हुआ ना कुछ, तो ये उन लोगों को ज़्यादा फीलिंग आती है जो बहुत ही सेंसिटिव है, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दैट डोंट वांट टू दैट डोंट वांट टू फेस एनी टाइप ऑफ डस्ट और एनी टाइप ऑफ अदर मटेरियल, दे फेस सच टाइप ऑफ थिंग्स। Okay, so this was all about allergy. You have to remember this immunoglobulin, इस एंटीबॉडी को याद रखना है, इस केमिकल को याद रखना है कि कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, what is their action, vasodilation is the main action, what they do. Now last topic for today is immune system. Immunity तो we have done, immunity तो हमने कर ली है, जो हमारे पास पावर है फाइट अगेंस्ट डिजीज। अब हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। इम्यून सिस्टम इन बॉडी, कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ का बना हुआ है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियाज, लाइक दिस। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissues, cells and antibodies। ठीक है, एंटीबॉडीज को हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, वी आर नॉट टू डू। अभी हमें जो ध्यान से करना है वो करना है लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाउ लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं ये? लिम्फोइड ऑर्गन्स आर साइट, ये वो जगह है जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, वो मैच्योर होती हैं और वो प्रोलिफरेट, नंबर इंक्रीज करती हैं, दैट इज लिम्फोइड ऑर्गन। सो लिम्फोइड ऑर्गन्स आर साइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिनेट होंगी, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। जिस प्लेस पर ये लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, वो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। व्हाट इज द प्लेस बोन मैरो? बोन मैरो कौन सी जगह है? जो हमारी लंबी लंबी बोन्स होते हैं, स्पंजी बोन्स हैं, उनमें एक कैविटी है जिसको बोन मैरो बोला जाता है, जहां पर सभी तरह की ब्लड सेल्स, हियर ऑल ब्लड सेल्स इन्वॉल्विंग या यू कैन से इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड। जहां पर ये सभी बनती हैं वो जगह है बोन मैरो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस एक ऐसा बॉडी पार्ट है, थाइमस की लोकेशन कहाँ है? हमारी चेस्ट कैविटी में बिटवीन बोथ लंग्स, दैट इज थाइमस। थाइमस एक ऐसी ऑर्गन है हमारी बॉडी की विच रिड्यूस विद आवर एज। बर्थ के टाइम पे ये बहुत बड़ी होती है और प्यूबर्टी तक आते आते साइज इसका छोटा होता चला जाता है और लास्ट एज तक ये साइज इसका बहुत रिड्यूस होता चला जाता है। किसका? थाइमस का। बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। यहाँ पर वो लिम्फोसाइट्स बनती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बनने के बाद these lymphocytes goes to secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. अब secondary lymphoid organs कौन कौन से हैं? स्प्लिन,
tonsils, Peyer's patches, and lymph nodes. ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स किसको बोलेंगे कि कौन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है और क्या इनका फंक्शन है? सी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में तो लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होंगी, मैच्योर होंगी, प्रोलिफरेट होंगी, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स साइट प्रोवाइड करेगा किसके लिए? इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड लिम्फोसाइट। क्या वो बन गई है, बन के रेडी हैं, अब उनको लड़ने के लिए जगह चाहिए है, इंटरेक्शन करने के लिए जगह चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सो इट प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स। इनके इंटरेक्शन के लिए ये स्प्लेस प्रोवाइड करेगा। कौन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कौन कौन है ये? स्प्लीन है। नाउ व्हाट इज स्प्लीन? इट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, राजमा शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस स्प्लीन। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन आवर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। जब लेफ्ट साइड जो हमारी स्टमक की है उसके ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है स्प्लीन। ऑफन डॉक्टर्स फील बाय पुटिंग हैंड ऑन देयर लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक में जब स्टमक से थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में डॉक्टर फील करते हैं कि स्प्लीन इज इन इट्स प्रॉपर पोजीशन और नॉट। स्प्लीन कई बार एनलार्ज हो जाती है जिससे बॉडी में डिजीज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। Act as filter of blood. How it act as filter of blood? By trapping, trap करती है, ये पकड़ लेती है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। By trapping माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ब्लड। इज इट क्लियर? यहाँ पर इराइथ्रोसाइट्स बहुत होते हैं, आरबीसी बहुत होते हैं स्प्लीन के अंदर। नेक्स्ट इज टॉन्सिल्स। यू नो कि बहुत सुना है टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स तो सबको होते हैं बट उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस डिजीज को टॉन्सिलिटिस बोला जाता है। व्हाट इज द प्लेस फॉर टॉन्सिल? दिस इज द प्लेस फॉर टॉन्सिल। जहाँ पर हमारी टंग एंड होती है अंदर, तो वहाँ पे दोनों साइड टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट इज पेयर्स पैचेज। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर्स पैचेज इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स। इसको थोड़ा सा पढ़ना हमने। लिम्फ नोड्स, यू नो हमारी बॉडी में जो भी, सपोज ये किसी पर्सन की बॉडी है, एक रफ सा स्केच हम बना लेते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। इन होल बॉडी लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट एंड एट सम पॉइंट्स नोड्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। व्हाट वी से? लिम्फ नोड्स। सो सम पॉइंट्स इन आवर बॉडी आर नोन एज lymph nodes. What they do? Lymph nodes trap antigen और पैथोजन। ये एंटीजन और पैथोजन को वहीं पर पकड़ लेते हैं so that they do not enter, so that they do not enter in lymph or blood, enter in lymph or any fluid, body fluids. समझ आ गया? So this was all about immune system in our body. आज हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बात की, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और टाइप्स के बारे में बात की, एलर्जी को हमने डिस्कस किया। तो ये सब तुम्हें NCERT से बहुत अच्छे से रीड करना है। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू। यू डोंट थिंक कि जस्ट वीडियो देखने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यू हैव टू डेफिनेटली रीड योर NCERT बुक। सो लर्न इट प्रॉपरली, मेक नोट्स,
if possible from my video, it will be very helpful for you. So next time we will discuss the topic AIDS, and maybe cancer will be there in our next video. Thank you everybody.